Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome you again to e-learning class of chemistry. I'm here now with my fourth lecture, which is going to be on branches of chemistry. This topic is given at page number 4 and 5 of your textbook. So everyone, please pay attention, and you must have your book and pencil in your hands to note down the meanings of difficult words and to note down the important points. So now let's move on towards our topic. The topic is branches of chemistry. Dear students, as you know that the field of chemistry is so vast. So therefore, to understand the subject of chemistry in detail and conveniently, we have divided this subject into the following main branches. So the first branch of chemistry is physical chemistry. Next, organic chemistry, inorganic chemistry, analytical chemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry, biochemistry, and environmental chemistry. Now, in this lecture, I am going to discuss only the first 4 branches of chemistry, and the remaining branches of chemistry will be discussed in the next video. The first branch of chemistry is called physical chemistry. What is physical chemistry? Look at the definition. It is a branch of chemistry that is concerned with the relationship. Relationship means taluk. So it is concerned with the relationship between the composition and physical properties of substances along with the chemical changes in them. यानी ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम 2 या 3 चीज़ों का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं. किन चीज़ों का रिलेशनशिप फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है? सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. व्हाट इज कंपोजिशन? कंपोजिशन मीन्स बनावट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द गिवन सब्सटेंस. इट मीन्स कि जो पीस ऑफ मैटर आप डिस्कस कर रहे हो, जिस मैटर को या जिस मटेरियल को आप स्टडी कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसकी कंपोजिशन का पता होना चाहिए. कंपोजिशन क्या है? कि जो पीस ऑफ मैटर अंडर स्टडी है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो किन एटम से या वो किन एलिमेंट से मिलकर बना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट वाटर, नाउ वी ऑल नो दैट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. इट मीन्स that water molecule is made up of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. So this is the composition of water. ये water molecule की बनावट है कि water molecule 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen से मिलकर बनता है. This is the composition of water. And what is meant by physical properties? Physical properties means observable properties. यानी वो तमाम properties, वो तमाम characteristics जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, द कलर, द फिजिकल स्टेट, हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा. तो ये डिफरेंट किस्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. तो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी मैटर की कंपोजिशन के साथ साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं. इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट वी एक्चुअली स्टडी इन दिस फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. मीन्स वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर स्टडी करते हैं. सो द मेजर टॉपिक्स दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री आर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. यानी जो हमारा एक मेन टॉपिक है जो हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है. वी ऑल नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. यानी जितना मैटर है वो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो इतने छोटे हैं जो हमें डायरेक्ट अपने नेकेड आई से नजर भी नहीं आते, वो तमाम पार्टिकल्स जिनको हम एटम्स कहते हैं, उस एटम का स्ट्रक्चर क्या है. As you can see in the figure, we have the structure of atom, and in the center there is present nucleus. Inside the nucleus there are present 2 heavy particles, neutrons and protons.
Outside the nucleus, there are shells, and inside the shells, electrons revolve. So this is the basic structure of atom. So the basic structure of atom and its detail is studied in the field of physical chemistry. Not only we study the structure of atoms in this chemistry, but we also discuss the formation of molecules, that how molecules are formed from atoms, what kind of combination occurs during the formation of molecules. तो एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को स्टडी करना, ये तमाम टॉपिक्स हमारे पास किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं? दे कम अंडर द फील्ड ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. अदर देन दैट हम और किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं? देयर इज बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. As we all know that solids, liquids and gases are the three states of matter. तो मैटर की ये जो 3 states हैं, इन स्टेट्स में चेंजेस किस तरह से आती हैं, कौन कौन से चेंजेस आती हैं और वो चेंजेस लाने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, तो इन तमाम चीज़ों को भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर. इसके साथ साथ हम फिजिकल केमिस्ट्री में ये टॉपिक भी डिस्कस करते हैं कि मैटर की किसी भी स्टेट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है. यानी आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो या आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो चेंज इन टेम्परेचर के साथ साथ मैटर में किस किस्म की चेंजेस आती हैं. तो ये तमाम टॉपिक्स और इनके साथ साथ कुछ लॉस हैं जो हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और मैटर के ऊपर अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से लॉज हो सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ. अब ये तमाम लॉज हैं और इसके अलावा और भी बहुत तरह के लॉज हैं जो हम अपने केमिकल सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं. राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज लॉज. हम इन तमाम लॉज को आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे. राइट नाउ आप अपने माइंड में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट रखो कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर एंड डिफरेंट लॉज which are applicable on our chemical systems. तो इन तमाम टॉपिक्स को हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन का रिलेशन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ स्टडी करना क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री. क्लियर? द सेकेंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. The word organic means natural. ठीक है, कीप इन माइंड कि ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या है? इट मीन्स नेचुरल. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, किस चीज की स्टडी को कहते हैं? लुक एट द डेफिनेशन. इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यानी कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दे रहे हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. ना सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, but it is also the study of hydrocarbons and their derivatives. Organic compounds, hydrocarbons and derivatives. Derivatives means जो आप हाइड्रोकार्बन्स में से डिराइव करते हो, हासिल करते हो, तो हासिल करदा कंपाउंड्स को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं. Now we must know that what is meant by organic compound and what are hydrocarbons. Hydrocarbons, as the name indicates, These are the compounds of carbon and hydrogen. यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उस ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. नाउ व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट. एसेंशियल मीन्स जरूरी. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किन कंपाउंड्स को कहते हैं? हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम का होना लाजमी है, along with the presence of hydrogen and some other elements. यानी वो कंपाउंड जिसमें कार्बन है, मस्ट है कार्बन, और कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है और कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी हैं सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा. तो इस किस्म के कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है. सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से that the study of organic compounds and hydrocarbons is called organic chemistry. यानी इन कंपाउंड्स की स्टडी, किस किस्म की स्टडी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करोगे, ये तमाम कंपाउंड्स कहाँ से आपको हासिल हो रहे हैं. सो यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
can be obtained from natural sources like plants, animals, human beings, etc. तो लिविंग बॉडीज से या जितने भी आपके पास नेचुरल सोर्सेज हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी से जो कंपाउंड्स आप डिराइव कर सकते हो, उन कंपाउंड्स को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी क्या कहलाती है? इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स. मीथेन. Methane is a compound having the molecular formula CH4. Similarly, ethane is another compound with the molecular formula C2H6. Now, if you can see the molecular formula of both these compounds, so you can notice that these compounds are made up of just two elements. We have carbon and hydrogen. So this kind of compound or these compounds are called hydrocarbons as they are made up of only carbon and hydrogen. Look at the next two examples. Glucose having the formula C6H12O6 and ethyl alcohol, which is also called ethanol, having the formula C2H5OH. Now these two compounds consist of which elements? They consist of carbon, hydrogen and oxygen. So as these two compounds, carbon, hydrogen and oxygen, so these two compounds are the examples of organic compounds. I have given you the first two examples from hydrocarbons and the next two examples from organic compounds. So, in simple words, the study of hydrocarbons and organic compounds is called organic chemistry. What does it mean? कि आपने इन तमाम organic compounds के sources या तमाम hydrocarbons के sources, इनकी properties, whether they are physical properties or chemical properties and their uses. तो ये तमाम टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. द नेक्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चीज की स्टडी को कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली बात जो आप अपने माइंड में रखोगे कि जितने भी एलिमेंट्स हमारी नेचर में पाए जाते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स के बिहेवियर को स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना किस ब्रांच में आता है? इट कम्स इनटू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. या आप इस तरह से भी कह सकते हो कि वो तमाम कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा बाकी जितने कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी जितने कंपाउंड्स हैं, उन तमाम कंपाउंड्स को पहली बात हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. एंड सिंपली द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. As you can see in the figure, there are certain elements which are given like cobalt, copper, gold, iron, etc., etc. So the study of all these elements comes under the field of inorganic chemistry. Look at the examples. For example, if we study the properties and behavior of water having the formula H2O, or salts like common salt, sodium chloride, NaCl, or acids like hydrochloric acid, HCl, or a base like sodium hydroxide, NaOH. All these compounds are inorganic, and the study of these compounds and many more is known as inorganic chemistry. Moving on to next branch of chemistry, it is called analytical chemistry. Analytical chemistry deals with the study of qualitative and quantitative analysis of matter. Analysis किस चीज को कहते हैं? Analysis mean किसी चीज का तज्जिया करना, किसी चीज को पूरी डेप्थ में जाके स्टडी करना. सो दिस इज एनालिसिस. कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप किसी भी मटेरियल को, किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी पीस ऑफ मैटर को एनालाइज करते हो दो तरीकों से. किन दो तरीकों से? यू हैव टू एनालाइज द गिवन सब्सटेंस क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली. लुक एट द वर्ड क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव के वर्ड से आपके माइंड में फौरन कौन सा वर्ड आना चाहिए? क्वालिटी. क्वालिटेटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम क्वालिटी. क्वालिटी क्या है? ठीक है, क्वालिटी में, मैटर की क्वालिटी में आपको क्या डिस्कस करना है? यू हैव टू डिस्कस द टाइप और काइंड ऑफ मैटर. कि जिस मैटर पे आप काम कर रहे हो वो मैटर किस काइंड का है, वो मैटर किस टाइप का है. मीन्स उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं. सो दिस कम्स इन क्वालिटी ऑफ द मैटर.
For example, the chemical identity of elements and compounds in a sample. कि अगर आप किसी सैंपल को स्टडी कर रहे हो, किसी मैटर को स्टडी कर रहे हो, तो आप पहली चीज जिसके ऊपर आप अपना वर्क स्टार्ट करोगे वो ये है कि आपके उस सैंपल में, आपके उस मैटर में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं या उस सैंपल में कौन से कंपाउंड्स मौजूद हैं. तो इस चीज को एनालाइज करना किस केमिस्ट्री में आता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में. एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव से आपके माइंड में फौरन कौन सा वर्ड आना चाहिए? क्वांटिटी, मिकदार, proportion, amount. So you also have to discuss or analyze the amount of each substance in a sample. कि जिस सैंपल को आप स्टडी कर रहे हो, आपने उसमें ये देखना है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं और कितनी अमाउंट्स में मौजूद हैं. So this study or this analysis, which is both qualitatively as well as quantitatively, this comes into the field of analytical chemistry. Is it fine? Now what analytical chemistry deals with? यानी अगर आप इसकी एप्लीकेशंस की तरफ चले जाओ या थोड़ा सा आप इसको मजीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहो तो आप एनालिटिकल केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करोगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. यानी ये वही बात रिपीटेड है कि जब आप किसी सैंपल में कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करोगे, जब आप मिक्सचर्स को आइडेंटिफाई करोगे, इट मीन्स यू आर डूइंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस. यानी आप उसकी क्वालिटी से डील कर रहे हो. एंड ऑल्सो फाइंडिंग प्रोपोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स अज्जा, कि आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस मैटर में मौजूद हैं वो कितनी अमाउंट्स में हैं, वो कितनी प्रोपोर्शंस में हैं. सो दैट मीन्स यू आर डीलिंग with quantitative analysis. So both qualitative analysis and quantitative analysis of a substance or matter comes into analytical chemistry. Analytical chemistry studies and uses instruments and methods or techniques which are used to separate, identify and quantify matter. यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में जब आप एक मैटर को स्टडी करते हो तो आपने डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना होता है. डिफरेंट किस्म के मेथड्स और टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए आप अपने मैटर को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो. क्वांटिफाई यानी आप उसकी प्रोपोर्शन, उसकी मिकदार भी फाइंड कर सकते हो. और इवन आप अपने मैटर में से जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो अज्जा हैं, उनको सेपरेट भी कर सकते हो. सो ऑल दिस कम्स इनटू द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. There are some applications of analytical chemistry, although they are not given in your books, but you must have an idea, a little bit idea about the applications of analytical chemistry. For example, in the field of medicine, it is the basis for clinical laboratory test. यानी जितने भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट जो हम करवाते हैं डिफरेंट किस्म की डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए, तो ये जितने भी टेस्ट हैं जो लेबोरेटरीज में किए जाते हैं, which helps the physicians or doctors in the diagnosis of diseases. So this also comes under the study of analytical chemistry. In the field of industry, it provides methods to check the quality of product. As I have also told you earlier that analytical chemistry involves the qualitative analysis of matter. तो इंडस्ट्रीज में या किसी भी फील्ड में जब हम किसी सब्सटेंस या अपने किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं, so again it comes under the study of analytical chemistry. In short, analytical chemistry play an important role in all aspects of chemistry. मेडिसिन की फील्ड में, इंडस्ट्री की फील्ड में या डिफरेंट किस्म की जो बाकी फील्ड्स हैं, उन तमाम फील्ड्स में एनालिटिकल केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. So dear students, this was all about physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, analytical chemistry. In the next lecture, I will discuss the remaining 4 branches of chemistry with you. So, inshallah, we will meet in our 5th lecture with the next 4 branches of chemistry. Till then, stay safe, stay home, good luck.